Hello everyone. Let's introduce my YouTube channel that is the Biology Expert, in which I'm going to upload the videos of biology chapters of 11th and 12th class. So this is my first video of my YouTube channel, and I decided to explain about the sexual reproduction in flowering plants. And one more specialty that I want to introduce to you guys is that I will explain according to the NCRT pattern, strictly to the NCRT. Means if I decided to choose the sexual reproduction in flowering plants to explain, which means that I'm going to explain each and every page of NCRT to you guys so that it will be easy for you to correlate the concept and information according to you to the NCRT. Okay, so let's start with the first page of the this chapter, sexual reproduction in flowering plants. So what does means the sexual reproduction? As you all guys know that reproduction is of two types, sexual as well as asexual. Okay, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो कितनी अमेजिंग बात है कि ये जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, फ्लावर्स का देखिए कितना यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ ornaments, in terms of grief, in terms of happiness, in terms of love, affection, and many other things. लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अगर उनकी हम कंप्लीट बॉटनी की बात करें तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, कितनी अमेजिंग बात है कि ह्यूमंस भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड फ्लावरिंग प्लांट्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. तो जो आपका फर्स्ट पेज ऑफ NCRT होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, उन्होंने फ्लावर्स की इम्पोर्टेंस और फ्लावर्स की ये एक अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताया हुआ है कि फ्लावर्स जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और उनका जो है बेसिक पर्पस जो वो प्ले करते हैं. लाइक वो हम लव के एक्सप्रेस करने के लिए किसी को देते हैं, अफेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए देते हैं, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, एज वेल एज और अदर्स जो पर्पसेस हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए हम ये फ्लावर्स यूज़ करते हैं. सो लेट्स talk about the parts of a flower so that we can go deep inside the this concept, how they reproduce, what happens during the process, and what are the pre-events and what are the end products after the fertilization happens. Okay, so to start with the first, suppose I'm going to draw a rough picture. Suppose this is the longitudinal section of a flower. So I'm going to write the parts and explain to you guys. Okay. First, the colorful parts that may be of any color, white, red, pink, yellow, that are the petals. Petals. And the inside the flower, the small sticks, small, very delicate sticks that we usually see in a flower, what are they called? Okay. This one part, inside the flower, there are two types of sticks. If I explain to you,
One part is called androecium, one is gynoecium. Inside the flower, there are delicate sticks, what we can say is. So I draw the picture of these delicate sticks. Basically there are male and female part. The male structures collectively called as androecium, and female structures collectively called as gynoecium. Okay, so this is the basic unit in which the reproduction happen, events happen. Okay, as I told you, the androecium is the male part. Means this is the whole unit in which the small parts are there. Like in androecium, it consists of stamens. जो स्टेमेन है वो आगे दो पार्ट से मिलकर बनती है. वन इज एंथर एंड फिलामेंट. मान लीजिए अगर ये वाली स्टिक जो है ये स्टेमेन है. ओके, ये मैं एक को लूँ, ये स्टेमेन है, तो जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज एंथर and this is the filament, right? अब जो एंड्रोशियम है ये बहुत सारे स्टैमेन मिलके, मतलब एक फ्लावर में जो भी मेल कंपोनेंट होगा दैट इज एंड्रोशियम, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड्रोशियम एंड स्टैमेन. एंड्रोशियम जो है वो इज द मेल पार्ट है जो स्टैमेन से मिलकर बनता है, और जो स्टैमेन के आगे पार्ट है वो एंथर एंड फिलामेंट है, जो क्या बनाएगा, जो पॉलेंस बनाएगा. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसे पार्ट आएगा इसका. एंड लेट्स टॉक अबाउट द गाइनोशियम. जो गाइनोशियम है वो फीमेल पार्ट है. वो किससे मिलके बनता है? जैसे स्टैमेन के दो पार्ट से मिलके बनता है, जो गाइनोशियम है वो मिलके बनता है कार्पेल से, और कार्पेल के होते हैं तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट? अब कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, एंड्रोशियम मेल पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट है, तो इसको कैसे याद रखें? जो गाइनी वर्ड है दैट इज़ रिलेटेड टू सॉर्ट ऑफ फीमेल, तो हम इससे याद रख सकते हैं कि जो गाइनी वाला पार्ट है, गाइनोशियम है, वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का. ओके, जो एंड्रोशियम है ये मेल पार्ट है फ्लावर का, राइट? ओके, तो ये तो है बेसिक. पेटल्स, मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसमें हमने पढ़ा कि मेल पार्ट जो है वो किससे मिलके बनता है, और जैसे मेल पार्ट स्टेमेन से मिलके बनता है तो उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और जो फीमेल पार्ट गाइनोशियम है वो किससे मिलके बनता है और उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं, राइट? तो अभी जो पूरा यूनिट है उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? पूरा जो चैप्टर है हमारा
हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा, राइट। तो इस हम पूरे चैप्टर को प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इस में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। प्री फर्टिलाइजेशन, अब हम हर एक टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं और क्या क्या इवेंट्स होते हैं, राइट। कि अगर प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स को अपने खुद को अपने प्रिपेयर करना है फर्टिलाइजेशन के लिए, उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगी, क्या उनका एंड प्रोडक्ट बनेगा, तो जो वो जाके फर्टिलाइजेशन कर सकें, राइट। सो जब आपको अपने एनसीईआरटी के पहले पेज में मैंने आपको बताया कि क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको फ्लावर के बारे में पता चलेगा कि फ्लावर का जो हम उसका यूज़ करते हैं, तो उसके अलावा एक अमेजिंग फैक्ट बताया है कि ये फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। जब आप दूसरे पेज पे जाओगे अपने एनसीईआरटी के, उस पे एनसीईआरटी में फ्लावरिंग प्लांट का एक डायग्राम बना हुआ है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का, तो उसमें पार्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए अभी, राइट। तो उसी में प्री फर्टिलाइजेशन का पार्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। Okay, so this is all about the parts of a flower. In the next video, I'm going to explain the pre-fertilization events, right? So please let me know in the comment section if any other improvement I want to make in my videos, right? So that I can improve myself to explain to you guys, right? So please like, subscribe and share. Thank you.